A very good morning once again. And I'll be talking about the Institute Preparedness for NEP 2020 implementation. I was asked to talk about this. But I myself first want to know that how many of you are aware of NEP 2020 policy? Because if I go to a higher level और आपको अभी स्टार्टिंग भी बिल्कुल नहीं पता कि क्या है एंड देन आई स्टार्ट कि अच्छा इंस्टीट्यूट को कैसे करना चाहिए, बट आप लोगों ने किस पहले कुछ एनईपी 2020 के कुछ सेमिनार या कुछ अटेंड किया हुआ है? एनी? नो? Oh, I was told that UP people have already done that. Okay, then okay, मैं बीच में शिफ्ट कर जाऊंगी फिर. Right. So first of all, we are the product of the education system which our country is having. Then, even after 75 years of independence, we are still fighting to come up with some foolproof education system. There should be changes in education system, it's okay. But अभी भी हम यही कह रहे हैं कि नहीं, present education system ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, in spite of the Apple, Google और Prime Minister of England और सारे इतने सारे जो main global platforms हैं, they are headed by Indians and they are product of this education system जिसके हम product हैं, but still we are fighting for the same. We are fighting for the change in the education policy. Why? Your viewpoints. आपको लगता है कि जो आप पढ़ के आए हो बहुत अच्छा पढ़ के आए हो और बहुत ठीक पढ़ के आए हैं, कोई चेंज नहीं होना चाहिए? It is a foolproof system or what at the global level the requirements are done. एक बात मेरे को एक दिक्कत है थोड़ी सी, आप जाए, आप पीछे बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे नजरों के स्पैन में ना वो अटेंटिव होने चाहिए, नहीं तो आप आगे आ जाओ और बातें करनी है तो बाहर चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 लोगों के साथ भी कंफर्टेबल हूँ. ओके, सो see, if I talk about our education system, and this slide I always put in as my first slide for every presentation because we are the teachers. Okay? And when we talk about the education system, education policy at any level, the main responsibility or the heart of the education system are teachers. And you are now in the process or you're already teachers. So you should have this, this, you should feel that responsibility. Okay, the budding or the young generation which will become engineers, doctors, or they will get go to any profession. We are responsible for making them the engineers. We are responsible and we have to be the role models. आप भी अगर अपना टाइम चाहे 10th से लेकर इंजीनियरिंग तक जो भी आपने एमटेक तक करा है, यू सी, आपको कौन से टीचर्स याद होंगे? वो टीचर जो अटेंडेंस नहीं लेते थे और सबको पास कर देते थे और जाओ ऐश करो, या वो टीचर्स जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे लेकिन अच्छे से पढ़ाते थे? कौन से टीचर्स याद है आपको जो अच्छे से पढ़ाते थे? चाहे डांटा भी होगा लेकिन बाद में, उस समय तो गुस्सा चढ़ता है, लेकिन बाद में वही टीचर्स याद रहते हैं, दोज हु आर सिंसियर, राइट, दोज हु यू लुक अपॉन अप टू, कि हमें वैसी नॉलेज होनी चाहिए, हमें वैसे पढ़ाना आना चाहिए, राइट? So teachers are always heart of the education system because the onus and the responsibility of making any education policy successful is on teachers. Bureaucrats हैं, policy makers हैं, दिल्ली में बैठे हैं, डाल देंगे ये करो ये करो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, बच्चे कहेंगे अच्छा करो करो करो, करना किसको है? Teachers. So faculty members or the teachers are mainly responsible. They have to feel responsible, and it's a huge responsibility whenever there is a change in the education policy or education system. I can see that some of you might be from that range of the students जिनके टाइम 10th में ऑप्शन आया था कि सीबीएसई लेना है कि नहीं लेना है कुछ ऐसे कि आप सब उससे सीनियर? Okay, चलो I will talk about that. So now, if I see the, again I am saying that abhi bhi we are fighting, we are still in the looking for changes in the education policy. But if I just want to, with a few slides, divert your attention
towards our education system which we used to have long so many years back. अगर आपने सबने नालंदा, तक्षशिला सब नाम सुना हुआ है यूनिवर्सिटीज का, और वो कब थी वो यूनिवर्सिटीज? So many years back, right? At that time we had, so our, if I बैठ जाओ भैया आप पहले बैठिए। ठीक है, are you comfortable? Okay, so I'm talking about the glorified education system which we Indians were proud of. Way back in the ancient India, चलो गुरुकुल महाभारत वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, but we had the various universities. जब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं कर रहा था, यूरोप में था, but इंडिया में we had a very systemic and very advanced education system. We have always heard of the zero decimal system. It was given by our scholars, our mathematicians. Even the not only zero and decimal जो हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, even you know the plastic surgery, first plastic surgery, ये चल रहा है मेरी आवाज? So the first plastic surgery was done by Indians, right? The first dam by the civil engineers, the dams were built by Indians, right? जितना मर्जी हम कहें कि ये हम सबको पता है कि अर्थ रोटेट्स अबाउट द सन, ये भी इंडिया ने था, राइट? एरोप्लेन वाला भी बेसिक पार्ट फ्लाइंग वाला इंडिया का था। ये अलग बात है कि हमारे उस समय ये नॉलेज नहीं थी कि हम उसको ग्लोबल लेवल पे पेटेंट कराएं या उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दें, बट देवर सो वी कॉल इट से ग्रेविटेशनल पुल, हम कहते रहते हैं दूसरों ने दिया। हमारी जमीन, हम लोग अपनी जमीन को क्या कहते हैं इंडिया में? धरती, राइट? So that is which धरती का अगर आप if you break it, so धरती is जो अपने पास धर ले। So it means there is a pull. Yes, the name was not given, but there is a pull by which the earth attracts each and everything to it, and that is your gravitation. So what I want to emphasize is that we had such a glorified education system with so much of knowledge and so much of good multidisciplinary educational universities. Nalanda की हम क्यों बात कर रहे हैं? Why we are reviving it? Because during that time, that was a university, not a standalone college. जो अभी हमारे यहाँ सिस्टम है, सिर्फ इंजीनियरिंग का कॉलेज बना दिया जिसमें कंप्यूटर और आईटी चलाती है, राइट? बिकॉज उससे पैसा आ रहा है, या सिर्फ लॉ कॉलेज है, या सिर्फ नर्सिंग का कॉलेज है. वी डोंट हैव मच मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज. कुछ कुछ है, चलिए डीयू एंड डी, बट वहां भी सारे वो नहीं. सो उस समय में वी हैड नालंदा, वी हैड तक्षशिला, वी हैड नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज, वी हैड द स्कॉलर्स, चाणक्य है ना, पाणिनि, और जो ये मेडिकल के थे, या गार्गी जो वुमेन थी, चरक. सो वी हैड सो मेनी, यू नेम एनी ऑफ द फील्ड, सी, चाहे वो वोकेशनल, क्लॉथ मेकिंग, पेंटिंग, आर्ट, एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, जैसे प्लास्टिक सर्जरी का दिया, आयुर्वेदा, वी ऑल नो. सो वी हैड सच ए ग्लोरिफाइड एजुकेशन सिस्टम. देन व्हाट वेंट रॉन्ग? वी हैड सो मच ऑफ सच स्कॉलर्स. हाँ, नेविगेशन, योगा, आर्ट्स, चेस, कोई भी आप सोच लीजिए, ये नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, कोई भी स्फीयर सोचिए, एंड वी हैड दैट एक्सपर्टाइज वे बैक व्हेन it was not known or nothing was being done at the global level. But then what went wrong? उसके बावजूद भी हम अभी भी यही कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी एजुकेशन रेट जो है इट इज स्टिल 60-70%. So what went wrong? Invasions at every level, right? कभी मुगल्स आ रहे हैं, कभी अफगानी वाले आ रहे हैं, कभी अरब्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने तो खैर बहुत ही वो कर दिया. So there were so much invasions, but जो मुगल्स और ये थे, उनकी invasions में फिर भी some information or some knowledge part was added. They were as an addendum to our present existing system. जैसे मुगल्स ने, अकबर ने किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप हिंदी के साथ साथ में अपना वो मदरसों में भी पढ़ाई करो,
ठीक है, वुमेन की भी उन्होंने ही स्टार्ट की थोड़ी सी पढ़ाई, दे एडेड, बट द मेन uprootment of the system was done by the Britishers. उन्होंने, और ये this is a psychological effect, this is studied effect. If we want to change the system of the society, or you want to uproot the system of the society, you uproot the education system, everything will be spoiled. आप किसी भी जगह का एजुकेशन सिस्टम हटा दो, उसका सब कुछ उससे रिलेटेड क्या, उससे नॉट रिलेटेड भी सोसाइटल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सब कुछ खराब हो जाता है. एंड दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड दैट इज व्हाई जो हमारा ग्लोरीफाइड एजुकेशन सिस्टम था, वो सब उन्होंने वहां तक पहुंचने नहीं दिए, कुछ खत्म कर दिए, कुछ खराब कर दिए, और नॉर्मल लोगों तक उसकी जो है मूवमेंट नहीं हुई. एंड दैट इज व्हाई अभी भी we are still fighting for the good education system. This picture is just a representation of that Gandhi ji gave in the round table conference, and he had that audacity. सबके सामने global platform पे he mentioned that this is a line from the that document. The beautiful tree of education was cut down by you British, and therefore today India is far more illiterate than it was 100 years ago. But you may say कि हम तो बुक्स में पढ़े हैं कि मैकॉले, बेंटिक, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, उन्होंने ये किया, उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए ये किया है ना, लेकिन उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, दैट वाज ओनली टू मेक अस अ ग्लोरीफाइड बाबूस. जो हमारा अभी भी जेनेटिक मेकअप में ना वो इनकॉर्पोरेट हो गया है. हम हर चीज नौकरी के लिए करते हैं, सरकारी बाबू बनने के लिए करते हैं. बाबू चलो हर लेवल का बाबू, नॉट क्लरिकल, एट एवरी लेवल, राइट? क्योंकि दे मेड आवर एजुकेशन सिस्टम इन सच ए वे कि सिर्फ जो उनकी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, वो सिर्फ बीच में दे वांटेड अ लिंक जो उन पॉलिसीज को कॉमन मैन के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सके, राइट? एंड दैट इज व्हाई आवर total education system which we had in the past was uprooted. So this is the data for the like after independence, right? 1947 we had such a poor show. That is, if you see this, only one child out of every 11 was in this school. And do you know that is samay a person was called literate on what grounds? नो, 10th पास नहीं, और कॉमन एग्जाम लेता था जो उसको बोलते थे. किसको? नोट जो पहचान लेता था, पढ़ना बस जो सिर्फ अपना नाम लिख सकता था उसको हम लिटरेट कहते हैं. साइन कर ले, अपना हाथ से लिख ले या नाम लिख पढ़ ले, उसको हम लिटरेट कहते थे. दैट वाज द पुअर सिनेरियो ऑफ द लिटरेसी. Then certain education policies and efforts were taken, and education was first as the state for this in the state list of the means education was a state list item. The state was responsible, right? Then it was okay, और देखा कि क्या education policy में changes है. फिर आया कि okay जो 5वीं क्लास तक पढ़ ले वो literate है, right? फिर जो उसके बाद 86th amendment आई, where the education was taken as the fundamental right for the age from 6 to 14. So lot of efforts have been done, right? So there were policy in 1968 and then it was 1986. उसके बाद अभी तक कोई भी policy education की पूरी नहीं आई. And if you see 1986 से ये policy आई 2020 में, how many years? 34 years, right? And if you see the global scenario, not only the global, national scenario also, is 34 years में, how much changes do you see in the entire social setup? इन्हीं 34 years में कंप्यूटर इतना ज्यादा हमारे लाइफ में आया, इन्हीं 34 years में टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन, राइट? इसी 34 years में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. सो जब इतने सारे चेंजेस आए इन्हीं 34 years में, ग्लोबल मूवमेंट पहले होता था, आप छोटे भी होंगे जब, तो अगर बहुत कोई होता था एक मोहल्ले में या पूरे शहर में 2-4 नाम होते थे कि उनका बच्चा अमेरिका पढ़ने गया है या उनका बच्चा यूरोप में पढ़ना है, राइट?
नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, आई थिंक एवरेज हर दूसरी फैमिली का कोई ना कोई रिलेटिव या बच्चा जो है वो बाहर पढ़ने जा रहा है। ये चेंजेस अभी आए ना, जब हम पढ़ते थे तो पूरे हमारे मतलब सोनीपत में 2 लोग थे, हमें पता था कि उनका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। अभी क्या है, मेरा भाई अमेरिका में, मेरे मामा की बेटी है, मेरे मासी की लड़की है, मेरे चाचे का लड़का है। बहुत है ग्लोबलाइजेशन। Now the education is not restricted to the university, four walls of university or boundaries of the colleges. You people might be coming from a small village, लेकिन आप अब पहले क्या होता था, उसी शहर में आप पटना में पैदा हुए, वहीं पढ़े, 10वीं करी, वहीं 12वीं करी, आसपास थोड़ा सा 10, 12, 15, 20 किलोमीटर के उस पर डिग्री कर ली, वहीं नौकरी कर ली, वहीं शादी हो गई, वहीं बच्चे हो गए, वहीं यही होता था पहले। अभी what are the dreams? Even from the remotest area of a village, एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, he has the dream to do his BTech or any graduation, say from IIT Delhi. Doing his IIT Delhi graduation, he may think of moving to MIT for his post graduation, getting a job into Europe, and retiring in Australia. Nobody can stop him because the globalization, the interconnections, the interrelations, they have changed. So अगर इतने changes 34 years में आए हैं, हम क्यों अभी तक अपनी उस education policy पे चिपके हैं? Right? I agree कि हाँ जी हम पढ़े हैं, हम बड़े अच्छे हैं जी, हम पहुंचे हैं देखो. But do you think that you have faced or you are facing certain challenges during education system, in this education system? सब ठीक लगता है आपको? सब इंजीनियर्स है ना? सारे इंजीनियर्स बनना चाहते थे? चलो एक आंसर, एक ट्रू आंसर आया, और कोई? सब चाहते थे? अच्छा जो भी कंप्यूटर्स है, पहले तो सब कंप्यूटर इंजीनियर्स कितने? कंप्यूटर तो सब बनना चाहते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कितने, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है। तो इनमें से आप लोग कितने थे जो कंप्यूटर करना चाहते थे, मिला नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, चलो नेक्स्ट। आप सिविल करना है, और अभी क्या है आप? इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई ऐसे भी थे जो इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहते थे, या किसी से पूछा गया? अच्छा चलो कुछ थे कि आप क्या करना चाहते थे? या किस, अच्छा चलो इंजीनियरिंग तो सब करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारी सोसाइटल सेटअप भी ऐसा है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप आर्ट्स के हैं, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, जब तक आप आईएएस नहीं बन जाते तब तक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बीए पढ़ रहा है, लड़के में प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ, है कि नहीं? ऐसा हमारा सोसाइटल सेटअप ऐसा है। बट इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, I have taught around more than 20 years in the colleges, BTech और MTech. बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे देखे जो हमारे जो बच्चे they were just forced to do computer engineering or electronics engineering or whatsoever because their parents wanted. Because many times we children are living the dreams of our parents. और एक एक दो बच्चे, पहले 5-7 होते थे ना, चलो एक इंजीनियर बन गया, 2 टीचर बन गए, कोई बात नहीं। आजकल सबका एक एक दो बच्चे, सबको चाहिए मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, राइट? सो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो पूरा सोसाइटल सेटअप, एज आई मेंशन, कि एजुकेशन सिस्टम रूल्स आवर सोसाइटल सेटअप। अगर लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियों की ग्रेजुएशन है, तो सोसाइटी पे भी वैसा चेंज होगा। अगर स्टूडेंट्स को आप 9th 10th से ही क्रिएटिव थिंकिंग कराना शुरू कर रहे हो, तो सोसाइटी में वैसे चेंज होगा। वोकेशनल आप 10वीं 11वीं के बाद करा रहे हो या छठी क्लास से शुरू कर रहे हो, सोसाइटी में चेंज होगा। नहीं तो कोई अगर आईटीआई में चला जाए, आप खुद ही कहोगे, आपका 10वीं का क्लासमेट होगा, वो कहे मैं आईटीआई में हूँ, आपकी कैसी फर्स्ट फीलिंग आएगी? फिर आ रहा है ये आएगी ना, अरे तू पढ़ा नहीं होगा यार, निकम्मा हो गया तू। क्योंकि हमारे सोसाइटल सेटअप में ऐसे हो रखा है कि वोकेशनल देयर इज अ हायरार्की। इफ यू आर इंजीनियर यू आर इंटेलिजेंट, राइट? इफ यू आर इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी यू आर मच मोर इंटेलिजेंट, यू आर फ्रॉम एनआईटी, गुड। अब अगर मैं एनआईटी आईटी से हूं, तो अगर मुझे कोई कहे मैं यूपीटी हूं, यही एटीट्यूड है ना, क्योंकि सोसाइटल सेटअप ऐसा है हमारा, राइट? My daughter, she wanted to become a lawyer. 6th class से हम सारे engineers, she wanted to become lawyer, and she said
10th में कि आई टेक आर्ट्स, हमारे घर में महाभारत हो गया, हाउ कैन यू टेक आर्ट्स, आर्ट्स मतलब तो हमें, मेरे हस्बैंड को लगा तो इसका मतलब मेरे को तो सब ये लोग कहेंगे इसकी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं होगी जो इसने आर्ट्स दिला दिया है, चाहे डीयू में या अच्छे और उसमें there are good colleges where good art students JNU में करने का, but our societal setup is like this, and this is because of our present education system जिसने इतनी hierarchies जो है वो develop कर दी। either you become the 10th के बाद ही हो जाता है साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, पूरा डिसिप्लिन स्पेसिफिक। अगर आपने साइंस ले लिया, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, बीएससी करनी है, नॉन मेडिकल ले लिया, इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, कंप्यूटर, हर चीज को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है। यस और नो? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए और आप कंप्यूटर करना चाहते थे, कोई मायका लाल, इस जन्म में तो आपको और कंप्यूटर नहीं करना, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर डॉक्टर? नहीं, मैं नहीं कह रही सारे इंजीनियर्स बनने, मैं तो ये कह रही हूँ कि हर बच्चे, मैं ये एग्जांपल दे, सी वी बीइंग इंजीनियर्स, एग्जांपल इंजीनियर का आता है, मैं लॉयर होती तो मैं लॉयर का एग्जांपल देती, मैं ये नहीं कह रही हूँ, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे इंजीनियर है ऐसा माइंडसेट है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बराबरी नहीं कर रखी है। अगर मैं कहूँ मैं एक आर्ट्स की टीचर, मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ और मेरे साथ एक टीचर इन कंप्यूटर साइंस कराए, हम दोनों की सेम सैलरी, सेम प्रोफाइल, सेम सब कुछ होना चाहिए सोसाइटी में। तो अगर ये वेरिएशंस नहीं होगी तो किसी ये नहीं होगा कि मुझे सिर्फ इंजीनियर ही स्मार्ट बनना, इंजीनियर ही इंटेलिजेंट हो सकता है, चाहे वो 6 सीजीपीए लेके हो रहा हो, सप्लियां ले लेके इंजीनियर बन रहा हो, वो इंटेलिजेंट है। और आर्ट्स वाला बच्चा जो है वो 8-9 सीजीपीए बन के बीए और एमए कर रहा है, वो नालायक है। क्यों? क्योंकि आप ये तो ध्यान नहीं दे रहे हो ना कि बच्चे की इंटेलिजेंस पे तो कोई फोकस नहीं है, उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी पे कोई फोकस नहीं है, उसका सिर्फ ये फोकस है कि कौन सी स्ट्रीम में जा रहा है। +2 का एग्जाम दिया आपने या जेई का एग्जाम दिया, ठीक है, मैंने आई गिव यू लाइव एग्जांपल्स, आई डोंट टॉक अबाउट थ्योरी। आई हैव सीन 2 गर्ल्स, मेरे फ्रेंड्स की बेटियां बचपन से साथ पढ़ी, राइट, सेम स्कूल, एवरीथिंग सेम, कोचिंग सेम, बुक सेम, सब कुछ सेम किया। सिर्फ वो जो 3 घंटे का जेई का एग्जाम था ना, उसमें एक लड़की ने अच्छा किया और एक लड़की ने कम अच्छा किया। सो द फर्स्ट वन गॉट इन एनआईटी हमीरपुर में, आई हैव टॉट, वहीं पे थी वो, शी गॉट into admission into NIT, the second one could not get and she got into some private institute of Himachal। और जबकि जो जिसको प्राइवेट में मिला वो ज्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी क्या है, आप सारा साल नालायक पंथी करो, सारा सा ऐश मारो, खाओ पियो घूमो, बस फाइनल एग्जाम के जो 3 घंटे हैं उसमें चाहे नकल मारो, चाहे पर्ची मारो, चाहे कुछ करो, इफ यू गेट गुड मार्क्स यू आर इंटेलिजेंट। That is why we have changed the system into now you must be having formative assessment and summative assessment। करते हैं कि नहीं? ये पता है कि नहीं पता है? इंटरनल असेसमेंट है ना, तो इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स हैं? 40 है और फाइनल के 60। अभी ये उल्टा हो जाएगा, इंटरनल के 60 और फाइनल के 40। वो 60 किस लिए है? ये देखने के लिए कि पूरा टाइम बच्चे ने सारा साल कितनी मेहनत की है, कितनी उसकी एक्चुअल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंसिया है, ना कि सिर्फ आखिरी के 3 घंटे में अगर उसने अच्छा कर लिया तो भाई ब्रांडेड है वो, और मरते दम तक 12वीं के नंबर गिने जाते हैं हमारे। इतनी यहाँ पे भी आओगे प्रोफेसर बनने के तो भी पहले 12वीं के नंबर बताओ, ये नहीं पता कि वहाँ पर्ची पकड़ी थी लेकिन 12वीं के नंबर है, बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज दिस। यस सर। इसके फिर डिसएडवांटेज है ना बहुत ज्यादा, अगर 60 इंटरनल हो जाएगा ना तो टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के 60 देंगे, और जो बच्चा हमेशा क्लास में रहता है ना एक्टिव, उसको ज्यादा मिलेंगे। और कुछ बच्चे टीचर्स के ज्यादा क्लोज होते हैं ना, जो टीचर्स का कुछ काम भी कर देते हैं, उनके 60 हो गए तो इंटेलिजेंस तो फिर पीछे रह जाएगी। इसीलिए ना इसके साथ, मतलब मैं तो अभी वहाँ पहुंची नहीं हूँ एनईपी में, मैं अभी आपका सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी, इसके इसीलिए जो है ना सबसे ज्यादा फोकस पता है किस पे है? ह्यूमन वैल्यूज पे। आपको भी कर रहे होंगे ना कि आपको जबरदस्ती वो करने हैं ना, टॉप एआईसीटी ने स्टार्ट कर दिए, यूएचवी में ले आए कुछ तो टीचर्स ट्रेनिंग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, अभी ऑनलाइन है। मतलब ये आपको सी प्रॉस कॉन्स हर चीज के हैं,
एंड जो हमारा इंडियन है ना एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा वास्ट है कि उसको आप कहो कि हर चीज एक ही ढंग से चलेगी, वो नहीं चल पाएगी। लेकिन वो टीचर पे ना डिपेंड करेगा ना, वो बच्चे, एक टीचर ने देखना है कि 100 बच्चों को कैसे करना है, कि मुझे उसमें से 10 फेवरेट है, मैं उसको 5 नंबर ज्यादा दे रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ। पर जो अभी की पॉलिसी क्या है कि 100 बच्चे अलग, मतलब उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। आप नेगेटिव देख रहे हो ना कि टीचर जो है वो नंबर दे देगा, वो फेवरेटिज्म करेगा, राइट? तो वो एक टीचर की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स तो उसी तरीके से चलेंगे। चलो दैट इज आई टॉक अबाउट इट। वो मैम होता तो है, होता तो अभी भी है, होता अभी भी है। आप फीडबैक उसी टीचर को ज्यादा देते हो कि जिसने तुम्हारी एक क्लास नहीं ली हो। जैसे था ना स्कूल की फीडबैक, अभी आप नाउ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, यू विल फील दिस हीट, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रही हूँ तो मुझे पता है कि क्लास में फीडबैक किस टीचर की सबसे ज्यादा, मैं उस टीचर की ना फीडबैक हटा देती थी जिसका 10 में से 9 फीडबैक आ रहा हो, क्योंकि इसका मतलब वो टीचर जो है या तो क्लास नहीं ले रहा या सबको पास कर रहा है। इतना इतना कोई टीचर इतना फुल प्रूफ अच्छा नहीं हो जाता कि सारे बच्चे उसको 10 में से 10, 9 में से 10 ले। उनका पास करना भी तो जरूरी है। क्यों? बोलते हैं यही तो प्रॉब्लम है एजुकेशन हमारे सिस्टम में। आप देखिए, आप अभी तक आपका आप पेपर क्या पूछते हो, आप भी अपना पेपर बनाते हो ना, इसमें भी आप सीखोगे कैसे क्वेश्चन पेपर बनाना है ना? पर अभी तक आप कैसे क्वेश्चन बनाते हो? व्हाट इज दिस, डिटेल, डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर। सिर्फ आप बच्चे का क्या चेक कर रहे हो कि वो कितना रट्टू तोता बन सकता है। आपने कभी, जो भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के हैं, मैंने तो वो हमारे टाइम तो ना ये प्रोग्रामिंग भी सी नई आई थी, मैंने देखा था बच्चे सी प्रोग्रामिंग के भी गोटा मारते थे, क्योंकि प्रोग्राम्स में पता था ये टीचर यही पूछेगा, फिबोनाची सीरीज एन फैक्टोरियल, उतनी औकात टीचर की थी और उतना वो बच्चों से उम्मीद करते थे और वही पूछते थे। और आप किसी भी टीचर के 10 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको पेपर मिल जाएगा। क्योंकि हम बच्चे की, अभी तक जो हमारा सिस्टम है, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि बच्चा कितना मेमोराइज कर सकता है और थोड़ा बहुत कितना अंडरस्टैंड कर सकता है। हम जो आगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जानते हैं सब, हाँ, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कितने लेवल तक हम डिग्री होल्डर्स को भी पहले और दूसरे पे ही है। आप 7th सेमेस्टर का भी पेपर उठा के देखो किसी का, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी वही कहेगा ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम। एक दो बार तो ऐसा होता था 8086 या 8051 पेपर नहीं मिलता था। एक बार मैं ड्यूटी पे गई और बच्चे ने 8051 का 8086 का ब्लॉक डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। मैं कहा भाई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, तू बना रहा है, यही पेपर आएगा मैडम सब में। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज 8086 का, because our present education system has this flaws, right? चाहे आप रट्टा की कहो, फेवरेटिज्म, देखो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा, राइट? तो इसलिए आप कहोगे अगर ये सिस्टम 60-40 आ गया तो उसको मिल जाएगा 40-60 को, हर एक का प्रॉस कॉन्स है। वी आर द बेस्ट जजेस एंड बीइंग टीचर्स वी हैव टू बी, ये आप अपना जो इमोशनल और प्रोफेशनल बैलेंस को आपको बनाना चाहिए, और ये विद एज ही आता है, विद एक्सपीरियंस आएगा। आप लोग अभी नए नए आए हो, आपको कोई आएगा और बच्चे बड़े तेज हैं, तुम लोग नहीं होगे ना अपने टाइम में, कोई मैडम अच्छी, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो मैडम, उस दिन मैडम ने 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। कोई जब 3rd-4th ईयर में पहुंच जाते हैं बच्चे, मैंने देखा कि सुट्टा फूक इनको डाल देती हूँ, ये नहीं सुन रहे, 3rd-4th ईयर के बच्चे एक ही जगह सुट्टा फूक रहे हैं, वो टीचर के साथ बात हो रही है आराम से और नंबर ज्यादा मिल रहा है। So this comes with the experience, this comes with your values and ethics, कि आप एक टीचर की तरह you are the pillars of the society। आपको वो बच्चा याद नहीं करेगा वो तो बाद में बाहर निकल के यही कहेगा कि बेवकूफ बनाई मैं आज 10 नंबर ले आई टीचर से। वो टाइम चला गया। आजकल बच्चे एट एवरी जनरेशन, यू पीपल आर कमिंग राइट नाउ, आपसे जो अगले भी 3-4 साल छोटे होंगे ना, वो आपको बेवकूफ बना के चले जाएंगे। They are smart कि कैसे काम निकालना है। It is your intelligence, it is your values, it is your parameter कि मुझे अपनी
फेवरेटिज्म को कैसे साइडलाइन करके किसी और तरीके से फेवरेटिज्म शो कर सकते हो ना आप। उसको, आपको ज्यादा नंबर देने हैं, आप उसको टॉपिक से तो और कहो कि ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, अपने आप पेपर पे आएगा अच्छा काम किया। ओके, so coming back, so present education system, 3-4 things which are being challenged. First one is the totally hierarchy in our education system. Hierarchy in the sense of, as I said, कि आप मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी है। आप एक कॉलेज में आपने जेई में अच्छा नहीं किया और आप एक प्राइवेट कॉलेज में चले गए, आपका हमेशा हर कोई चैलेंज, एम तो आईटी और एनआईटी के लिए ही करता है, हर बंदा वहां नहीं पहुंच सकता है, राइट। लेकिन फिर भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप कभी कोई सब्जेक्ट आप आईआईटी के प्रोफेसर से या एनआईटी से पढ़ सको। अभी है क्या? वो अलग चीज है, ऑनलाइन एजुकेशन है, लेकिन वैसे आप पढ़ सकते हैं नहीं, वो भी अभी स्टार्ट हुआ है। एनपीटीईएल और जो मूव का इंक्लूजन है वो भी जस्ट 2-3 इयर्स पहले ही, और अब तो खैर एनईपी के बाद इट विल बिकम मैंडेटरी, राइट। बट अभी देयर इज नो सिस्टम। इफ से आई हैव बीन इवन बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, या जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, किसी की कोडिंग कंप्यूटर वाले से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको कौन सा सब्जेक्ट एक आध तो पढ़ सकता है जो उसको ओपन इलेक्टिव मिलेगा, या प्रोग्राम इलेक्टिव में अगर डेटा स्ट्रक्चर्स है तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स ले लूंगा, राइट। अगर जो भी नौकरियां भी आप देख रहे होगे, जो प्लेसमेंट होती हैं, चाहे वो सिविल का है चाहे कोई भी है, सब कंप्यूटर आईटी में हो रहा है, तो वो कोडिंग सब अपने आप हॉस्टल में बैठ के करते हैं। एज अ सब्जेक्ट, एज अ करिकुलम, दे डू नॉट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो व्हाई शुड नॉट बी गिवन दैट फ्लेक्सिबिलिटी? If I am an electronics engineer but I am good at computers, or I have good coding, or I have a flair for computing, so I should have some flexibility to read certain subjects related to computers also. If I am a civil engineer, मेरी लेकिन aesthetic sense और भी अच्छी है, so मैं उसको, या आप अभी और electronics, right, but you liked civil, so अगर आप कुछ subjects civil के भी पढ़ना चाहो तो आपके पास चॉइस होना चाहिए, जो अभी नहीं है। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी, कि मैं कहूँ सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल का बच्चा आर्किटेक्चर पढ़ना चाहे, सच ए गुड कॉम्बिनेशन, यस और नो। सिविल का बच्चा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना चाहे, सच ए गुड कॉम्पिटिशन, भाई जिसने डैम बनाने, घर दीवारें बनानी है, अगर उसको डिजास्टर मैनेजमेंट की नॉलेज होगी, इट इज गुड। अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा रोबोटिक्स पढ़ना चाहे, इट इज गुड। मैकेनिकल का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहे, इट इज गुड कि रोबोट बनेंगे तो मैकेनिकल पार्ट है, साथ में उसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, कंप्यूटर कोडिंग भी चाहिए। बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, and not only interdisciplinary. I say I am an electronics engineer, but I have passion for knowing the history of my country, or I have passion from, say, classical dance, or I have a passion for music. I should have that choice to pursue my passion to some extent also. ये नहीं कि चलो जी कंप्यूटर डिग्री करने और कंप्यूटर छोड़ के बाकी सब कुछ कर लिया, लेकिन बीच में कुछ सब्जेक्ट्स, some flexibility should be given to work, or to students should have that flexibility कि वो अपने पैशन को, अपने काम को, या जो उसको वो ठीक लगता है वो करने की उसको थोड़ी बहुत आजादी हो, जो अभी सिस्टम में नहीं। अगर आप एक बार इंजीनियर बन गए तो आप बन गए, बस उसके बाद आप कुछ नहीं। एंड इफ यू सी फॉरेन कंट्रीज, यू माइट हैव नोटिस्ड 40-50 साल बाद भी डॉक्टर जो है वो लॉयर बनना चले जाते हैं, राइट। इंजीनियर जो है वो छोड़ के आप कारपेंटरी या टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो देयर इज अ चॉइस जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं, राइट। सो and there are many other things which at this level I will not talk about. NBA NAC, आप सब पॉलिटेक्निक से, तो लेकिन एनबीए तो जो नैक तो नहीं होगा, बट एनबीए तो है। सो मतलब ज्यादा उसमें नहीं मैं जाऊंगी, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि बहुत सारे हमारे सिस्टम में एक्रेडिटेशन क्या है, क्वालिटी चेक है कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई को, आपकी डिग्री की पढ़ाई को वो स्टैम्प कर रहे हैं कि आप क्वालिटी है। सो उसमें क्या है, आप कभी आपको अपने एक बॉडी है जो आपकी डिग्री को या डिप्लोमा को एक्रीडेट कर रही है, एक बॉडी है जो आपकी लैब्स को कर रही है NABL, एक बॉडी आपकी टीचिंग को कर रही है, एक बॉडी आपकी यूनिवर्सिटी को कर रही है। सो देयर आर मल्टीपल हायरार्किकल सिस्टम व्हिच इज फॉर द एक्रेडिटेशन।
So उस चीज को भी it is not considered good because every time teachers resources time they are busy for that particular part. So उसमें भी changes है. Second और what and second thing is the autonomy given to the institutes and to the teachers. कितने सारे कॉलेजेस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएशन है. कुछ कॉलेजेस हैं जो NITs IITs हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, कुछ कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं. आप लोग होंगे कुछ कॉलेजेस से जो UPTU से है, ठीक है, KU से है. So they are affiliated colleges, there are degree colleges, there are diploma colleges, there are state colleges, there are state universities. So much of variation is there and there is no uniformity, there is no flexibility and there is no uniform. आपको जो आप जिनके पास तो ऑटोनॉमी है वो अपना करिकुलम भी खुद बना रहे हैं, अपना टीचिंग स्टाइल भी खुद कर रहे हैं, नंबर भी खुद दे रहे हैं, परसेंटेज भी खुद, सब कुछ उनके हाथ में है. जो कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है. ऊपर से करिकुलम थोप दिया जाता है, ऊपर से मार्किंग स्कीम भी बता दिया है, क्वेश्चन पेपर आ गया, आंसर चेक होके दे दो, आपके पास क्या चॉइस है? नथिंग. सो देयर इज वेरी लेस यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ the type of colleges and the autonomy given to the colleges, which is a challenge. So there are certain more other things which I won't talk about here right now. So what I want to stress upon is that the present education system, no doubt it is good, it has its own pros and cons, but when we are now thinking about the requirement at the global level, requirement at the national level also, वो उसके लिए there are certain challenges and limitations in the present education system, and that is why this education policy has come up after a gap of 34 years. And moreover, one see अभी तक बीच बीच में छोटी छोटी पॉलिसीज में आया, जैसे +1 +2, पहले हमारे टाइम प्री मेडिकल और इंटर ऐसे होती थी, फिर हो गया +1 +2, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया कि मेडिकल जैसे 12th में आप मेडिकल नॉन मेडिकल एक साथ ले सकते हो, स्कूल एजुकेशन में चेंज आया, बट फुल पॉलिसी देयर वाज नो चेंज. बट दिस पॉलिसी, okay, so you can just go through this. I've talked about this. Yeah. So entire policy which take care of the entire educational framework. स्कूल में जब बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ने जाएगा और जब तक बच्चा पूरी PhD करके नहीं निकलता है, तब तक का पूरा जो फ्रेमवर्क है that has been suggested in this policy. सिर्फ ये नहीं कि आपने एजुकेशन टेक्निकल को बदल दिया, आर्ट्स को बदल दिया, वोकेशनल, नो, पूरा एजुकेशन. तभी they are saying that it will take 20 years, by 2040 जो है this NFP policy will be in full force, कि जो 2040 में पहला बच्चा नर्सरी क्लास में जाएगा वो पूरा इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पढ़ेगा. सो यू कैन सी, जब ये लोग ही कह रहे हैं कि 20 साल लगने हैं, so the type of or the quantum of changes which will be required at every level, और step wise change शुरू हो गया है. स्कूल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, प्लस जो 8th क्लास में जब बच्चा जाता है उसमें चेंजेस हो रहे हैं. टेक्निकल एजुकेशन में they have already started, NITs, central universities, they started with multiple entry exit. So some steps, minor steps are being taken, and if you see जो UGC के हमारे चेयरमैन है, राइट, उनकी डेली जो है न्यूज़पेपर में या आप लिंक्डइन पे अगर आप उनको फॉलो करेंगे, so daily he is coming up with suggestions and the policy regarding the implementation of NAP 2020. So now I'll just focus upon what is this. So there are very many points because as I said कि educational framework को पूरा change करना है. So not only school education, technical education, but vocational education, professional, right, teacher education. अब ये जो आप लोग आए हुए हैं ये तो induction program है, but now as madam was mentioning that I am dealing with the competency updation of the teachers, and not only teachers, of the deputy directors, principals and heads. That is part of this policy. क्योंकि अभी क्या है, बीटेक कर ली, आप सब बीटेक है, एमटेक भी है, एमटेक,
एमटेक कर ली, ठीक है, कितने लोग होंगे आप में से जो पीएचडी करना चाहते हैं या करेंगे? क्योंकि पीएचडी से आपको आपके प्रोफेशन में कोई है फर्क? एक दो इंक्रीमेंट्स होंगी, या जब तक आप प्रिंसिपल बनोगे तब शायद हो जाए। इसलिए मैंने देखा कि ज्यादातर पॉलिटेक्निक्स के टीचर्स दे डोंट वांट टू गो फॉर पीएचडी, राइट? क्योंकि हमारे उसमें मतलब एक बारी जो आप बन गए उससे नौकरी मिल गई, उसके ऊपर कोई जाना नहीं चाहता। बट एनईपी सेज कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होनी है टीचर्स की, नॉट ओनली टीचर्स। ऐसे मैं कह रही हूँ स्पेशल गवर्नमेंट इज गिविंग फंड्स फॉर कॉम्पिटेंसी अपडेशन। जो हम अब मैं पढ़ के, मेरे टाइम में पास्कल फोर्ट्रॉन थी, आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे नाम, राइट? तो चलो सुना है। फिर सी जब आई तब हम फाइनल ईयर में थे, तो आप लोगों ने सबने सी पढ़ी। अब पाइथन भी आ गई है, सब ओपन है, मैटलैब है। कितने लोग कॉलेज में पाइथन पढ़ के आए हैं? मैटलैब तो करके आए होंगे आप सब लोग। 2014-15 से ऊपर वाले बैचेस होंगे ना? 18 मतलब उससे ऊपर, मतलब इधर। सो मैटलैब करके आए। कितने लोग पाइथन जानते हैं? 1 2 3। नहीं, कॉलेज में पढ़ाया, खुद पढ़ा? दैट इज योर अपस्किलिंग। सी दी एजुकेशन पहले ना, अगेन ऑफ द रिकॉर्ड्स, जब मैं इंजीनियर बन हो रही थी तो मेरे को था मैं तो ये बनूंगी, एसडीओ बनूंगी, एंड माय मदर यूज्ड टू से नहीं न्यू टीचर बनो, बहुत अच्छी नौकरी होती है, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, 2-4 क्लासें लेनी है बस। एंड नाउ आई नो कि टीचर बनने का मतलब क्या है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस अपस्किलिंग। आप बच्चे को, सामने वाले को पाइथन और मैटलैब और आपको जी मैं तो कॉलेज में सी पढ़ के आया हूं, मुझे इसके अलावा नहीं आता, दिस वोंट डू। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, राइट? आपको अभी आप टीचिंग 5-10 साल टीचिंग, फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा। उसके लिए कोई मैं तो कोई एमबीए नहीं करी है, बट आई हैड टू डील डिपार्टमेंट विद 20 फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के। बट अगेन आई वाज रीस्किल्ड फॉर दैट जॉब आल्सो। सो अगेन व्हाट आई वांट टू करते हम अभी भी है, लेकिन वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे आप अभी इंडक्शन के लिए आए हैं, से 5 इयर्स बाद आपको फिर अपस्किलिंग के लिए, या 2 साल में कुछ और आ गया उसकी स्किलिंग के लिए आपको कंपल्सरी हो जाएगा कि ये रिफ्रेशर कोर्स करो, ये प्रोग्राम्स करो अपने आप को। और क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, राइट? पहले स्लो होता था। अगर पास्कल फोर्ट्रॉन 20 साल चली, फिर सी 10 साल चली। अभी क्या है, मुझे तो नाम नहीं पता, पाइटॉर्च आ गया, तो मैं तो पाइथन से स्ट्रगल कर रही थी, एक पाइटॉर्च आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। सो टेक्नोलॉजी is very fast updating. We need to upskill ourselves क्योंकि हमें फिर स्टूडेंट्स को ही आगे कराना है। So the teacher education is now very important part and teacher को flexibility देना। अभी हमें जबरदस्ती थोप दिया जाता है, ये करिकुलम है, इसके इतने लेक्चर लेने हैं, इतने कट, यही आता है ना आपके पास, एलटीपी बन के आता है, yes or no? उसी में आप लेक्चर्स करते हो, लेसन प्लान बनाते हो, वही लेक्चर्स, उतना ड्यूरेशन, मार्क्स भी आपको उस यूनिट से इतने मार्क्स का पेपर देना है, उस यूनिट से इतने का देना है, मार्किंग स्कीम भी आ जाती है। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड टू द टीचर, देन हाउ कैन द टीचर ब्रिंग इनोवेशन इन हिज टीचिंग और assessment? There is a challenge. So all these challenges are being addressed by this NAP policy. Okay, so I won't talk about this IDP. Yeah. So the first thing which I would say the prominent part of NAP which will affect us as teachers. Ma'am, as you mentioned that we start seeing the results around 2040. Ma'am, is there also a provision that this policy will stay? Like, let's say there is some change in political scenario and they might scrap it or something. So, is there some? मैडम तो अभी वो कौन है जो नौरा है जिसने अगले कितने सालों की भविष्यवाणी कर रखी है? I agree, but I know what you are asking for. You are saying we are not. I'm not saying कि 2040 पे results आने शुरू होंगे. Results अभी से दिखने शुरू हैं, right? I'll give you the example. But policy जो हाँ, और आप जो कह रहे हो कि ठीक है जी आज बीजेपी है, उसने ये पॉलिसी लाई और सबको धुआं दे रखा है इसको चलाने का, मे भी कांग्रेस आएगी और वो अगर उसको ये करना है कि बीजेपी को हटाओ, इसकी सारी चीजें वो हटा देगी। लेकिन इतनी आसानी
से जो मेन जो ये पॉलिसीज हैं, एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल लेवल पे हो रहे हैं, दे बिकम टू सम एक्सटेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। नाम चेंज हो जाएंगे बस। आप थोड़ा सा मे बी एक्सटेंड चेंज होए, मे बी स्टाइल चेंज होए, मे बी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, राइट? वो वी कैन नॉट, और आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी के लोगों ने ये किया है तो ये फुल प्रूफ है। हो सकता है जब इसको भी जब चलाएंगे और जो जो चीजें आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और फिर रेवर्ट बैक करना पड़े। एज आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ 10th सीबीएसई, 10th वाले सीबीएसई में क्या था कि टीचर स्टूडेंट की मर्जी हो गई थी कि आपको सीबीएसई का बोर्ड देना है या नहीं देना है। हुआ था ये, मेरे बेटे के टाइम ये था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बोर्ड देना ज्यादा बेटर है ताकि बच्चे की इवैल्यूएशन ओपन एंडेड होगी। स्कूल वालों ने, कुछ बच्चों ने सोचा कि नहीं, स्कूल में टीचर जान पहचानते हैं, वही है कि मेरा को टीचर जानता है, और फिर कितने साल वो चला। लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट क्या हुआ? वो यही देखा कि जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट प्लेयर्स थे, उन्होंने अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए किसी को बोर्ड नहीं दिलवाया, सब स्कूल में ही कराते रहे, और हर एक का 10 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, 10 सीजीपीए। तो वो 5-7 साल चला वो, उसके बाद देखा कि it is not coming up to the expectations and it has more problems rather than solving the problem मतलब issue was कि सीबीएसई का देने से बच्चे में टेंशन ज्यादा होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए कि चलो थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करो, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सब चला। लेकिन 5-7 साल बाद देखा कि it was not working, तो they have come back to the same platform. So it may happen, I am not saying कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल पक्की तरह से सिद्धांत और फुल प्रूफ है। अगेन इट इज अ ट्रायल, हो सकता है ठीक नहीं चले और कुछ चीजें वापस भी लानी पड़े। हो सकता है जितना ये लोग एक्सपेक्ट होंगे। इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि पॉलिसी ले आते हैं फ्रांस, इजराइल, वो इतने से कंट्रीज हैं जिन हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन से भी कई, यूपी में 5 कंट्रीज आ जाएंगे। तो लेकिन मतलब मॉडल उठाया इतने से और उसको इम्प्लीमेंट ज्यादा पे करना है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन चेंज लाने के लिए कुछ तो टीथिंग प्रॉब्लम्स हर लेवल पे होती है, तो वो तो फेस करनी पड़ेंगी। बाकी अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बोले तो मेन पॉलिसीज जब राज्यसभा लोकसभा पूरा मतलब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो एज सच पूरा स्क्रैप नहीं होता है। उसके बीच की चीजें, कुछ स्टेप्स, ये वो फर्क होगा, अप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा क्योंकि ऊपर ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो चीजें चेंज होगी। बट ये नहीं कि आज है और कल सरकार बदली और काटा होगा, राइट? ओके, सो फर्स्ट एंड द foremost thing which we teachers are affected is the what we have to teach. See, 3 चीजें होती है ना टीचर के पास, what to teach, how to teach and how to assess. बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें हमारे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। So the first and the foremost thing which is going to affect the teachers by this NEP 2020 is the curriculum restructuring. कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So सबसे जो मेजर हाईलाइट ऑफ दिस curriculum restructuring of NEP is providing the flexibility to the students. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि राइट नाउ देयर इज वेरी मच डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, राइट? सो एनईपी सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दीज सब्जेक्ट्स। जितना आर्ट्स का है, जितना ह्यूमैनिटीज है, जितना साइंस है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, डांस है, तबला है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, सब सेम लेवल पे होगा। नो चेंज, नो डिस्क्रिमिनेशन, अभी हम क्या कहते हैं, दिस इज करिकुलम, दिस इज एक्स्ट्रा करिकुलम, दिस इज को करिकुलम। होता है ना अलग अलग टर्म्स कि आपने सब्जेक्ट, आपका करिकुलम है, आपने एनसीसी ये सब करना है तो आपका ये को करिकुलम है, आपने डांस पेंटिंग करना है तो एक्स्ट्रा करिकुलम है, तुम्हारी मर्जी है, करो, नहीं करना उसके कोई मार्क्स नहीं, उसके। एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छे हमारे क्रिकेटर्स, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन एजुकेशन क्या है, 10वीं पास। बाद में ठीक है वो ओपन स्कूल से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, या अभी भी नहीं है कि आप साथ साथ कुछ चीजें कर सको, या आप स्पोर्ट्स चुनो या आप एजुकेशन चुनो।
म्यूजिक चुनो या आप एजुकेशन चुनो, बिकॉज टोटल वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स आर देयर. So NEP says there will be flexibility of all these 5 kinds: what to learn, how to learn, where to learn, and when to learn, and which pace to learn. Thoda I'll talk about all this. So first thing is what to learn. So as I said, no boundaries for curriculum, extra curriculum, or arts, humanities and science. मैंने electronics engineer का चुना, but if I want to learn about a topic, a subject, not learn, if I want to take a subject of say legal studies, तो मेरे पास choice होनी चाहिए और मैं पढ़ सकती हूँ, और जो मैं पढ़ूंगी उसके क्रेडिट होंगे और उसके जो मार्क्स होंगे that will be included in my degree. If I am a student of electrical engineer and I want to study 3D bioprinting, I can choose that subject. If I am a student of architecture but I have a passion for Carnatic music, nobody can stop me. You can choose that. So what to learn, what bouquet you have to form for your own learning, what trajectory you want to form, that will be totally the choice of the student. Again, the question will be, बच्चे को इतनी अकल ना होती है, 12वीं के बाद ज्यादातर पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, थोड़ा बहुत पता भी होता है बट इतनी नॉलेज नहीं होती, राइट? सो इसीलिए स्कूल लेवल पे भी चेंजेस है. फ्रॉम नाउ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th जब वो एंटर करेगा, द स्कूल लेवल इज नाउ 5 + 3 + 3 + 4 लेवल. फिर नर्सरी से सेकंड तक 5 इयर्स, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स, और जो लास्ट के 4 इयर्स है 9th 10th 11th 12th, उसमें बच्चे को हर लेवल की नॉलेज दी जाएगी और वहां पे फिर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उससे आइडिया होगा कि इस बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, या इसका जो फ्लेयर है वो किस डायरेक्शन में है. एक ही कॉमन, अभी क्या है, जेई अलग है, नीट अलग है, फलाना अलग, इतने सारे अलग अलग हैं, जिसका जो मन है आप दीजिए. लेकिन फिर क्या होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा और उसके बेसिस पे इट विल बी डिसाइडेड कि okay, this student is fit to go for the engineering part, this student is good for the art, or this student is good for commerce, right? So अगर हमको हायर एजुकेशन को चेंज आएगा तो उससे पहले स्कूल एजुकेशन पे भी चेंज लाया जाएगा और वो स्टार्ट हो भी गया है. जो बच्चा अगले साल 24 में जो 9th में बैठेगा वो एक डिफरेंट करिकुलम से उसको टीच किया जाएगा और उसको हर चीज का एक्सपोजर दिया जाएगा. जो वोकेशनल है, जिसको हम कह रहे थे कि नहीं 6th क्लास से हर बच्चे को एक वोकेशनल सब्जेक्ट करना है. तो अभी क्यों है हमारे ऐसे, हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट है, और कोई बच्चा वेल्डिंग का कोर्स कर रहा है तो हम उसको कहते हैं तो बेकार है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी है. अब अगर जो बच्चा 6th क्लास में साइंस और मैथ पढ़ रहा है, साथ में कारपेंट्री का कोर्स भी कर रहा है, आप कारपेंट्री कर रहे हो, आप स्मिथ कर रहे हो, आप मेजन का कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल का कर रहे हो, आप प्लम्बर का कर रहे हो, तो बराबर रहेगा ना सबके लिए. जैसे मैथ सब्जेक्ट है वैसे आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी आपकी बराबर रहेगी. तो वो जो डिस्क्रिपेंसी है, राइट, दैट विल बी रिमूव. सो फ्रॉम जैसे जो ये असेसमेंट होगी, मतलब कॉमन टेस्ट होगी, जैसे कोरिया में ये सिस्टम है, उनमें लेवल बनाए होते हैं कि जो बच्चा जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से. हाँ. तो ये कंपल्सरी होगा इस बच्चे के लिए, मतलब बच्चा करना Yes. इंजीनियरिंग चाहता है बट उसकी क्वालिटी है कॉमर्स में. नहीं, देखिए जो बच्चा अगर जैसे ठीक है, बच्चों की आजकल पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी पता है कि और इच्छा तो है क्या करना चाहता है. तो जो बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो जब वो 9th क्लास में आएगा तो वो उसका ज्यादा फोकस स्टेम है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, ये भी आप सुन रहे हैं ना आजकल के स्टेम अप्रोच है, और आजकल स्टेम को स्टीम कर दिया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. तो जो बच्चा अगर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ तो मैं 9th ऑनवर्ड्स ही मैं उन पॉइंट्स पे और उन एक्टिविटीज पे फोकस करूंगी जो मुझे साइंस की तरफ लेके जाए. ठीक है, ये नहीं कि आप सब कुछ वो पढ़ा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन एक एग्जाम दोगे अब चल तू इंजीनियरिंग कर लो. उसकी पूरी, फिर इसका मतलब वो 4 साल भी एक तरह से फाउंडेशन कोर्सेज या फाउंडेशन ईयर्स हो गए, जिसमें जो बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है वो उस इंजीनियरिंग के लिए प्रॉपर तैयार. मैंने कितने देखे, मैं आपको बता रही हूँ, और अभी भी है ऐसे, जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस में घुसा दिए गए जबकि वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, और इतनी अच्छी फोटो, कंप्यूटर साइंस में 6-7 CGPA एंड गुड फोटोग्राफर,
पर ठीक है, ही हैड ए गुड फादर, उसने कहा कि चल अब तू वो फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन वो लाखों रुपए कमा रहा है अपना सेटअप करके, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? सो चेंजेस विल बी देयर, राइट? मैम, तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में कोर्स कर रहा है, तो ये स्कूल लेवल तक ही ठीक है या हायर में भी जा सकते हैं? नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर में ही मैं बात कर रही हूँ। क्यों इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं, देखिए, फॉर एग्जांपल हाँ। एक बच्चा है वो मैथ्स भी ले रहा है बायो भी ले रहा है, तो मैंने देखा मैम एक साल वो आईडी जी की तैयारी करता है, उसमें नहीं होता तो सीधे नीट पे चला जाता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, वो जो ऐसे करता है वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। जो जो- इसलिए क्योंकि he chooses these two subjects maths and bio, then वो कंफ्यूज है कि मैं इसमें भी जा सकता हूँ उसमें भी जा सकता नहीं भाई, तभी तो ना ये कंफ्यूजन अभी कहाँ होती है, +1 में, हूँ। राइट? +1 में आके कंफ्यूजन होती है, दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, अच्छा ये नहीं लेना तो चल ये ले लेंगे, ये नहीं लेना चल ये कर लेंगे, तभी करते हैं ना ये। अब जब 9 से ही बच्चे को हो जाएगा कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी हो और आपकी उतनी कैपेसिटी भी हो और आपकी उतनी परफॉर्मेंस भी हो। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, राइट, आपका इंटरेस्ट है मुझे इंजीनियर, मुझे एरोनॉटिक इंजीनियर बनना है जी, मुझे अब्दुल कलाम की, लेकिन आपका दिमाग उस लेवल पे चल ही नहीं रहा है, आप उतना परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, इससे बेटर है कि आप वहाँ पे लो लेवल का साइंटिस्ट होने से आप एक अच्छे टीचर या एक अच्छे इंजीनियर बनिए। तो वही जो है ना डिलेमा, जो बच्चे को 12th के बाद आता है कि बाप ने धकेल दिया डर, या सोसाइटी ने कहा कंप्यूटर साइंस आगे नौकरी 5 लाख की है, चलो कंप्यूटर साइंस, लेकिन इंटरेस्ट सिविल में है, इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, राइट? वो चीजें तो पहले से ही कि 9th में ही अगर बच्चे का पूरा ऐसे चेकअप सा होगा कि चेकअप ही मतलब उसको जो सब्जेक्ट्स या उसकी ओरिएंटेशन या उसको जो एक्सपोजर दिया जाएगा वो हर फील्ड का दिया जाएगा, और फिर जो उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी कि ओके इसका बच्चे का जो है इंटरेस्ट या फोकस इस फील्ड में ज्यादा अच्छा है, तो आप लीजिए। तो जो अभी चैलेंज 11वीं 12वीं में बच्चा फेस करता है कि बायो लूं कि मैथ्स लूं कि इंजीनियरिंग करूं या ये करूं, वो पहले से ही उसका फाउंडेशन बनता है। अभी यूएस में ऐसे है, यूएस में ऐसे ही है कि 9th ऑनवर्ड्स वो करते हैं और 12th तक उनको फिर ओके नाउ अगर आप स्टेम में जा रहे हो तो इसमें आपकी कैपेसिटी है, ये आपके लिए अच्छा है, और जो आपने, क्योंकि जब एडमिशन होगा ना वो उन्हीं 4 साल के बेसिस पे होगा कि आपने उन 4 साल में इन कोर्सेज में कैसे कैसे परफॉर्म किया है, ओके यू आर एलिजिबल फॉर दिस, okay, but that is very far off story. Ma'am, if we have a multidisciplinary approach in technical education or higher education, will not that make our student jack of all but master of none? See, everywhere when there is flexibility given, it is always with certain limitations. Multidisciplinary का मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने गई और मैं 10 कोर्स पेंटिंग क्लास पेंटिंग लगा दिए, 4 फोटोग्राफी लगा दिए, 3 मैं डांस में चली गई, 2 मैथ में, और मेरे को डिग्री कंप्यूटर साइंस की। नो, देयर इज अ लिमिटेशन प्रॉपर कि अगर आपके सिर्फ 200 क्रेडिट की आपकी डिग्री है तो आपको एटलीस्ट 60% क्रेडिट्स आपके कोर्स, जो रिमेनिंग 40% क्रेडिट्स हैं वो आप ओपन इलेक्टिव्स में या मल्टीडिसिप्लिनरी में डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको चॉइस दी गई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फ्रॉम वेयर टू लर्न, राइट? अभी क्या है, आप बोलो कर लेंगे ये भी, but what will be the level of doing that particular course? Then How can we मतलब आप 9th 10th की बात कर रहे हो कि हायर डिग्री की बात कर रहे हो? ठीक है, मतलब आप जैसे higher कि degree- प्रोग्राम के टीचर कर लिया, इतना कर लिया तो फॉर एग्जांपल कुछ कर लेगा अपने उससे। नहीं देखिए, हाँ सी एज ऐसा जब थोड़ी ना कि सीख लिया लेकिन कुछ कर सर लेंगे। सीख लिया लेकिन क्वालिटी किसी में भी नहीं उसका। मतलब ये डिग्रेडेड इन क्वालिटी में दिस इज आई एग्री कि जब आप हमारे अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, पिरामिडल अप्रोच है। आप स्ट्रीम सेंट्रिक। फर्स्ट स्ट्रीम सेंट्रिक है, आप फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, सारे मैथ्स साइंस अप्लाइड भी पढ़ते हो, ठीक है? पहले तो हम स्ट्रेंथ ऑफ एक आध इलेक्ट्रिकल का पढ़ते हो, कंप्यूटर का मतलब मल्टी पढ़ते हो, फिर आप धीरे धीरे यू रीच बीटेक तक, 3rd ईयर फाइनल ईयर तक आपके इलेक्टिव्स जो है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक हो जाते हैं, फिर आप मास्टर्स में एमटेक में चले जाते हो, फिर कोर पीएचडी चले जाते हो। So it is a pyramidal approach, right? So इसमें क्या है, it is good as you are saying you have become master of one, ठीक है? But आप जैक भी नहीं, well, right? You have mastered one,
सो थोड़ा सा ये एस्पेक्ट के हर बच्चे को या हर जो भी फैकल्टी है उसकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन के मैं कोडिंग अच्छी कर रहा हूँ, अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे अगर रोबोट बनाना है, मुझे अगर थोड़ी बहुत नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है या इलेक्ट्रिकल की भी है या मैं कहती हूँ साइकोलॉजी की भी है, जब आपको रोबोट बनाना है उसके ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, अगर एक कंप्यूटर इंजीनियर को उसकी नॉलेज भी है, क्या वो एडेड एडवांटेज नहीं होगा? यस और नो? वी हैव अभी थापर में हमने बनाया है डिग्री विद कंप्यूटर साइंस विद ओके देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ नाउ मेजर एंड माइनर आल्सो। अभी आपको सिर्फ डिग्री मिल रही है ना कंप्यूटर साइंस में, नाउ यू हैव, और ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है, नाउ यू हैव द चॉइस ऑफ गेटिंग 2 डिग्रीज टुगेदर, मेजर इन कंप्यूटर साइंस एंड माइनर इन से इलेक्ट्रॉनिक्स, या अगर मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है माइनर इन कंप्यूटर साइंस। अगेन देयर विल बी लिमिटेशन कि आपको कम से कम 20% क्रेडिट्स, एक मेरी बात खत्म करूँ, 20% क्रेडिट्स आपको, जैसे आप मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए, लेकिन 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स करने हैं जो आपके माइनर के लिए सफिशिएंट हो, राइट? सो आपको डिग्री मिल जाएगी मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनर इन कंप्यूटर साइंस। अब बात रही प्लेसमेंट की, अगर इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस के इतने बच्चे मिल रहे हैं, वो इसके लिए क्यों जाए? ये इशू आएगा ना, क्योंकि हमारी अभी नेचर वही है कि हम डिग्री क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, आगे लाइवलीहुड कैसे अर्न करना है, राइट? तो वो सिस्टम, वो इंडस्ट्रियल सेटअप पे भी, सोसाइटल सेटअप पे भी चेंज लाना है और आ रहा है कि अगर एक इंफोसिस वाले को मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइनर इन कंप्यूटर मिल रहा है और साथ में ओनली कंप्यूटर मिल रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या काम कराना चाहता है वो उसको जॉब मिलेगी। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर विद कंप्यूटर साइंस है या मैकेनिकल इंजीनियर मेजर विद माइनर इन इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंपनी मैकाट्रॉनिक्स की है, तो ऑब्वियसली वो उसको प्रेफर करेगा। और मैं आपको कह रही हूँ कि हमने थापर में मेजर इन कंप्यूटर साइंस, माइनर इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट डिग्री चली है और वो अच्छे से उसमें इनटेक है, सो इट्स ओके। अब देखिए टाइम उतना है, ड्यूरेशन 6 महीने 4 साल की डिग्री है, 8 सेमेस्टर है, हर एक में टाइम उतना है, मतलब सब वही है, तो स्क्वीज तो करना पड़ेगा, कहीं तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा कि किसको हटा के दूसरे को डालना है अंदर, ठीक है? तो वो अगेन चैलेंजेस होंगे, बट आप जो कह रहे हो कि मास्टर जैक ऑफ ऑल हो जाएगा, मास्टर ऑफ नन, वो नहीं होगा, क्योंकि हर लेवल पे एक चेक एंड बैलेंसेस है। अगर मुझे ऑनलाइन एजुकेशन करनी है, जैसे आपने कहा मूक है, ठीक है, तो ये तो नहीं है ना मैं सारा टाइम घर बैठी रहूं 4 साल और सारे पेपर मूक से कर लूं, उसमें भी लिमिटेशन है कि आपके 12 क्रेडिट से ज्यादा आप ऑनलाइन या मूक से ओपन में नहीं कर सकते। So at every level, I give you one example of now it is through the learn pace भी, अभी क्या है, हर सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर बच्चे को, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी पेस ऑफ लर्निंग अच्छी है, या कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट है या वो नहीं जल्दी कैच कर पा रहा, उसको भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जो इंटेलिजेंट है उसको भी 5 पढ़ने। और यूजुअली हम टीचर्स क्या सोचते हैं, क्या करते हैं कि अगर मैं अपनी क्लास में सबसे जो नालायक बच्चा है, लास्ट में बच्चा है, अगर मैं उसको समझा पा रही हूँ तो इसका मतलब मैं बाकी भी सब समझ रहे हैं। यही एटीट्यूड होता है कि नहीं? होना भी यही चाहिए कि इफ यू आर एबल टू टैकल द वीकेस्ट लिंक ऑफ योर क्लास, बाकी के समझ नहीं। बट अब इसका दूसरा पहलू देखो, मतलब इंटेलिजेंट होना बेवकूफी है कि मेरे को अपना जो नॉलेज, मेरी जो गेन, मेरी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, मेरी कॉग्निटिव लेवल ज्यादा है, बट मैं उसी लेवल पे समझूं जिसपे कम वाला समझ रहा है, राइट? सो एनपी सेज कि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी स्टूडेंट को दे दो। इफ आई थिंक आई एम इंटेलिजेंट, मैं उस 5 सब्जेक्ट से ज्यादा 2 सब्जेक्ट और भी पढ़ सकता हूँ, मेरी अपनी क्षमता है, मैं क्लास लगा सकता हूँ एक्स्ट्रा, सो आई कैन टेक 2 more subjects from the coming semester and do at my pace। मैं 5 की जगह 7 कर लिए, तो वो जो 2 घंटे और 2 सेमेस्टर में कर लिए, तो मैंने कहीं ना कहीं 4-5 सब्जेक्ट्स पहले कर लिए, तो जब प्लेसमेंट की बारी आएगी या मुझे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना है, जीआरई की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, तो वो टाइम मैं उसमें यूज कर लूंगा। लेकिन फिर वही बात है, वो नहीं है कि 4 साल की डिग्री में 2 साल में करके चल बेटा खत्म,
नो, अगेन देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ 1 सेमेस्टर। आप एक सेमेस्टर मतलब 4 साल की डिग्री को आप 3.5 साल में आप कर सकते हो। फिर वो जो सेमेस्टर है, अगर आपको लग रहा है आप थीसिस कर रहे हो या प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो या किसी जॉब ओरिएंटेड कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें कर सकते हो। ऐसे ही स्लो पेस के लिए मुझे क्यों जरूरी है कि मुझे सारे 5 के 5 सब्जेक्ट करने हैं और मैं पांचों में ही कम मार्क्स ला रहा हूँ। इट्स बेटर आई गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स, I do well in them, and then I can take next remaining 1 or 2 subjects in the coming semesters. But again limitation है, ये नहीं फिर 4 साल की डिग्री 10 साल तक बैठे रहो। No, again you have 1 year. मतलब इसमें मुझे एक चीज को पूछना था, जैसे ये Right गई फ्लेक्सिबिलिटी क्या? वाला जो हाँ, बोलिए। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है, जैसे आपने बताया कि मेजर विद माइनर्स, तो मैम जैसे ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती है, जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, जैसे आईआईटीज एनआईटीज हो गई, वहां तो इंप्लीमेंट होना इज मतलब ठीक है, बट मैम जो स्टेट एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं जहां से पेपर पूरा बन के आता है, पूरा सिलेबस तैयार होके आता है, तो वहां इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि एनईपी सबसे पहला पॉइंट क्या करने वाला है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट्स है, ये जो एफिलिएशन सिस्टम है, ये अनदर 10 इयर्स में इट विल बी वेव्ड ऑफ। कोई कॉलेज एफिलिएटेड नहीं हुआ। अगर कोई भी कॉलेज जो है स्टैंड अलोन नहीं होगा, एफिलिएटेड नहीं होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी होना है और पूरी यूनिवर्सिटी की तरह होना है। सो एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव वन मेरू, दे कॉल इट MERU, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज। सब कॉलेज उसके साथ होंगे। कोई कॉलेज, जो भी कॉलेज होगा वो ऑटोनोमस होगा। ये एफिलिएशन वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एफिलिएशन से ही क्वालिटी खराब होगी। किसी की कोई एफिलिएशन है, किसी का कोई है। हाँ, तो आपने बताया था ना मेजर इन दिस माइनर, तो मैम वो कोर्स ड्यूरेशन होता ही है। हाँ जी, 4 साल का मेजर और जैसे 200 क्रेडिट्स भी उतने ही है। 200 क्रेडिट्स है, आपको बीटेक की डिग्री मिली, ठीक है। आपकी मर्जी, आप पूरे 200 क्रेडिट कंप्यूटर के लो, किसी ने नहीं होगा। क्रेडिट मैम डिसाइड कौन करता है? बच्चा कर रहा है। नहीं बेटा, क्रेडिट तो आपकी करिकुलम में आता है ना। अच्छा, अभी आपका क्रेडिट सिस्टम नहीं शुरू हुआ? नहीं है मैम, एक सब्जेक्ट स्टूडेंट डिसाइड करेगा। आपको 200 क्रेडिट्स है ना, उसमें आपको डिग्री मिलनी है, वो तो आपके करिकुलम में है ना। हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स। इसमें मैं एक और क्रेडिट वाले उसमें ना एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आईआईटी में देखा, जब मैंने बीटेक अपनी स्टेट बोर्ड से करी और जब मास्टर्स मैंने आईआईटी से करी, तो उसमें क्या ना, ये जो इंडिपेंडेंसी देते हैं क्रेडिट्स की, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट, मैम जैसे आपने बताया तो मैम जैसे क्रेडिट सिस्टम होगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो मैंने ये भी नोटिस किया था, जैसे बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक लेवल पे आपको एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए थर्मल के डिजाइन के, मैन्युफैक्चरिंग के। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंस ये वो जो स्टूडेंट को दे दिया ऐसा बेस्ट कि आप ये क्रेडिट्स ले सकते हैं, तो मैं फाइनल ईयर तक आते हैं कुछ मैकेनिकल में स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स के कांसेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता, बिकॉज़ उन्होंने वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं लिए मैकेनिकल। तो सी वो आपका करिकुलम पे होगा। देखिए, जब आपको चॉइस, प्लीज, ओके, सी जैसे मैं आपको, ओके, आई गिव वन एग्जांपल, उसी में सारा ये कवर हो जाएगा। आप भी बोलो क्या आपका इशू। मैम वही पूछना था, जैसे आपने बोला 200 क्रेडिट, तो वो बाइफरकेशन कैसे है? 50 इसका लेना है, 50 नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके 200 क्रेडिट्स हैं, ठीक है, कि आपको बीटेक के कॉलेज का वो है कि आपको बीटेक की डिग्री जो है वो दे दो, जो पास करना कर दो। आपको कुछ देना है साथ वाले को? दोनों लास्ट गर्ल। हाँ, हो गया। तो अगर आपके जैसे 200 क्रेडिट्स हैं, आपको डिग्री मिल गई, ठीक है। नाउ द स्टूडेंट हैज द चॉइस। फर्स्ट थिंग इज कि उसको वो 200 क्रेडिट्स जो है वो पूरे के पूरे एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंस के ही लेने हैं। उसको मास्टर ऑफ 1 बनना है। वो पूरे अपने सब्जेक्ट जो आपका करिकुलम बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, वो लेता जाए। पूरे 200 है। मैं हूँ एक सेकंड क्लास जिसमें आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो फर्स्ट इज 200 क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक्स के होगा। सेकंड इज मुझे मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की चाहिए और मुझे माइनर कंप्यूटर में चाहिए। तो ये पहले ही पॉलिसी होगा कि जिसको माइनर
लेना है उसके से 200 में से 40% क्रेडिट्स, 80 क्रेडिट्स आपके उसको सब लेने हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो एंड से 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। सो 5th 6th 7th 8th हर करिकुलम में कुछ बकेट्स होंगी जिसमें करिकुलम डले होंगे, जिसमें बच्चा चूज कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का करे, चाहे कंप्यूटर का करे, चाहे इलेक्ट्रिकल करे, चाहे हिस्ट्री करे, चाहे ज्योग्राफी करे, चाहे साइकोलॉजी करे, चाहे लॉ करे, चाहे डांस करे। राइट, मींस हर करिकुलम को ऐसा हमको रिस्ट्रक्चर करना है और फ्लेक्सिबल होना है कि हर बच्चे के पास ऑप्शन हो कि वो 20 जो क्रेडिट्स मैं कह रही हूँ कि 40 क्रेडिट्स कुछ भी, अगर मैं माइनर साइकोलॉजी में लेना चाहती हूँ तो मेरे पास वो 20 क्रेडिट के साइकोलॉजी के सब्जेक्ट होने चाहिए। मैं माइनर कंप्यूटर लेना चाहती हूँ तो 20 क्रेडिट्स के कंप्यूटर के होने चाहिए। मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ तो 20 आर्ट्स के होने चाहिए। इसीलिए जब हम कहेंगे कि हर कॉलेज में हर बच्चे के पास हर फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो उस कॉलेज में फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। मैं कहूँ मुझे लॉ पढ़ना है और वहाँ पे लॉ का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं हो, टीचर ही नहीं, पूरी बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए द अदर पर्सपेक्टिव इज कि एवरी इंस्टीट्यूट शुड बी एज अ यूनिवर्सिटी जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, और जब तक ये सारी फैसिलिटीज नहीं है तब तक मूक या ये जो ओपन सोर्सेज हैं इसको कर सकते हैं। ओके, सो इज इट क्लियर? फर्स्ट इज टोटल, सेकंड इज मेजर एंड minor, third is forget about major and minor, but I have certain love for passion for dance. मैं I am a classical dancer, मुझे करना है, लेकिन ये नहीं कि फिर मैंने 20 क्रेडिट ले लिए और डिग्री मेरी नो। अगर आपको दूसरे इलेक्टिव्स लेने हैं जो क्रॉस डिसिप्लिनरी है, उसकी भी कंस्ट्रेंट है कि आप 6 क्रेडिट्स या 8 क्रेडिट्स मैक्सिमम आप उस सब्जेक्ट के ले सकते हैं। तो ये जो आपका करिकुलम डिजाइन होगा ना, वो सारे उसमें ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइसेस और ये सारी चीजें होनी होंगी। अब बताओ, ठीक है? सो वही मैं अगेन, इट रिक्वायर्स अ मेजर ओवरहॉलिंग एंड मेजर हमारा माइंडसेट चेंज। हमारे वो ना 3 इडियट्स वाली मूवी थी, सबने देखी? उसमें कौन सा था वो फोटोग्राफर जो आईआईटी की डिग्री छोड़ के और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था? कितनों का हमारा, मैं तुम तो अभी यंग हो, मैरिड भी कम होंगे, मैं आई बीइंग इंजीनियर और जो मैं खड़े होकर भाषण देंगे, बट मेरा बेटा है कि मम्मा मुझे आईआईटी से नहीं करना और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहूंगा। क्या मेरा रिएक्शन होगा? तब पड़ी होएगा कि चल आगे पहले के कर, है कि नहीं? क्योंकि माइंडसेट नहीं है, क्योंकि अगेन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको लाइफ आप बन जाओ, 100 में से एक होगा जो जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से नौकरी मिलेगी और वो लाखों रुपए कमा लेगा, बाकी तो फिर वीडियो शूट करेंगे शादियों की। तो ये दिस माइंडसेट ये धीरे धीरे हर लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। आई एम गिविंग माय एग्जांपल, माय हस्बैंड इज आईएफएस ऑफिसर, राइट, ही इज आल्सो इंजीनियर, बट जब बेटी ने लॉ की बात करी, आर्ट्स की बात करी, तो हम दोनों हिल गए कि ये क्या हो रहा है। फिर भी जबरदस्ती +1 +2 उसको साइंस में ही कराया। कोई नहीं होगा तो देखेंगे, पर साइंस में कम से कम कंप्यूटर साइंस मेरे कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन मेरे नाम से। बट लकीली शी वाज एबल टू क्वालिफाई क्लैट और वो शी इज नाउ एडवोकेट। ठीक है, उसने कर लिया और अच्छा किया। मुझे लगता है वो मैं उसको कंप्यूटर में घुसाती, कोडिंग बोर्ड फेल होती और वहां पे उसको डिस्टिंक्शन आई। राइट, वो माइंडसेट, हम वी आर फ्रॉम द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, एजुकेटेड पार्ट, हमारा भी माइंडसेट इतना चेंज नहीं हुआ। और हमेशा मुझे हर साल डर लगता था कितने नंबर आएंगे, लड़की क्या करेगी क्या करेगी। बट नाउ शी हैज क्वालिफाइड, डन एवरीथिंग, नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अब मैं और अपने एग्जांपल देके करती हूँ। इन केस मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैंने इंजीनियरिंग चूज करी है जिसमें मैंने फोटोग्राफी, पेंटिंग एक दो क्रेडिट का ले लिया है, उससे तो वैसे भी करियर नहीं बनता। नहीं, उससे जॉब नहीं मिलेगी, मैं नहीं कह रही, बट आपका जो अंदर का पैशन है, ठीक है, उसको तो फुलफिल कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज हो रहा है, उससे कोई जॉब नहीं मिलेगी। मैं नहीं कह रही आपके मेजर और माइनर से आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आप कहोगे मैं बीच में एक डांस का कर रहा हूँ, एक मैं योगा कर रहा हूँ, वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बेसिस पे ये नहीं होगा कि आप जो आप कुछ भी आप करना चाहते हो वो आप कभी भी नहीं कर पाते। For that we have extracurricular in the current system. तो ठीक है, तो उससे क्रेडिट्स नहीं है ना, तभी तो बच्चे करते नहीं। मैं IEEE की चेयरपर्सन थी,
मैंने इतना जोर लगाती थी मैं अच्छे बच्चे और IEEE में आए, नहीं आते थे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं है, क्रेडिट्स नहीं है, इंटरेस्ट होता है लेकिन आते नहीं थे क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम उसका कोई वेटेज नहीं है। अब उसमें आपके क्रेडिट्स हैं, आप करिए स्पोर्ट्स, योगा करो, आप स्पोर्ट्स करो, डांस करो, एक आध आप एक सब्जेक्ट अपने लिए, अगर वो आपका पार्ट ऑफ द करिकुलम है तो उसके क्रेडिट्स होंगे। पर ये नहीं होगा कि डांस भी करनी, योगा भी करनी, बैडमिंटन भी करनी, और कंप्यूटर के अलावा बाकी सब कुछ होगा। फॉर एग्जांपल ये जॉब सेक्टर जो है, एक स्टूडेंट है जिसने 8 कोर सब्जेक्ट से किया है ग्रेजुएशन, और 200 क्रेडिट कोर सब्जेक्ट से लिए, और एक ये सबमिटेड डिस्प्ले ले लेंगे कंपटीशन, तो मैं फिर वो चूज तो उसी को ही करता है ना। सर यही तो मैंने बोला ना, ये कंपनी जो अब मैं यही कह रही हूँ, कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, आपका चैट GPT वाला है, बना रहे रोबोट। अब एक बच्चा है जिसको कंप्यूटर कोडिंग की आती है, जिसको साइकोलॉजी का भी उसने कुछ कुछ पढ़ रखा है, और उसने एक माइनर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ले रखा है, और उसने रोबोट वाली कंपनी है, और एक है जो सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग जानता है। आप मालिक को बताओ कौन किसको लोगे? क्योंकि सी अब जो आगे आने वाला भी टाइम है ना, वो भी सब इंटरडिसिप्लिनरी टाइप है। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यू टॉक अबाउट रोबोटिक्स, मेगा ड्रोन्स, है ना, सारे ड्रोन्स, हम तो अभी ड्रोन्स पे लड़ रहे हैं, एंटी ड्रोन्स भी आ गए। अब ड्रोन्स में कौन सी इंजीनियरिंग है बताओ? आप मुझे बताओ कौन सा इंजीनियर ड्रोन? वो इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रही है, वो मैकेट्रॉनिक्स से आ रहा है, और कोई रोबोटिक्स, और कोई हो गए ना चारों। तो अब कोई ऐसा इंजीनियर तो नहीं है जो मैकेनिकल कहे कि मैं ही सिर्फ ड्रोन में काम कर सकता हूँ, या कंप्यूटर वाला कहे कि मैं ही कर सकता हूँ, या इलेक्ट्रिकल कहे मैं कर सकता हूँ, या रोबोटिक्स कहे मैं कर सकता हूँ। सबकी है ना इंटरडिसिप्लिनरी। अब तो हम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के भी आगे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो रही है। यस, ये दैट इज अ key clue to this NEP पार्ट only। अब आपको डिग्री जरूरी नहीं है सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो रही, आपकी हो सकता है सिर्फ डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आ गई। हरियाणा में मैं कोर्स बना रही हूँ, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोमेन। आप मैकेनिकल इंजीनियर भी AI यूज कर सकता है, सिविल भी कर सकता है, हर कोई यूज कर रहा है। So this is how the things will slowly and slowly it will change. जाएगी समझ आती है? हाँ, बोलो बोलो। मैं एक चीज और कवर करूंगी बस फिर। It's in addition to whatever we are discussing. If there is a case that we have a combination of computer science as a major and electronics in minor, and there is some company or some government sector which is dedicatedly for the electronics part, so will they prefer that person as a? See again, it depends upon if industry वाला आपसे क्या काम कराना चाह रहा है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अभी बोलते हैं ना कि सिर्फ कंप्यूटर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में माइनर है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जॉब उसके लिए अप्लाई वो सर थोड़ा सा ये AICTE को और इनको ये पॉलिसी उसमें जैसे अभी भी क्या है, देखो AICTE का अगर आप बजट देखेंगे उसमें जैसे सिर्फ लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके साथ 15 और डिग्रीज हैं। कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स विद, तो वो सब AICTE ने यूनिफॉर्म उस ब्रैकेट में कर रखी है, तो वो इक्विवेलेंस है, उनकी इक्विवेलेंस। आप इलेक्ट्रिकल में हो तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जैसे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों ने बहुत प्रॉब्लम सही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन की इक्विवेलेंस AICTE ने नहीं करी। तो जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होता था वहाँ वो IC वालों को नहीं लेते थे, लेकिन अब है, अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहो तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इट इज इक्विवेलेंट। तो वो जो नॉर्म्स है ना कि अगर आपकी इसमें मेजर है उसमें माइनर है तो वो किसकी इक्विवेलेंस है? अगर कंप्यूटर मेजर माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसकी इक्विवेलेंस कंप्यूटर में है कि उसकी इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वो सारे नॉर्म्स जैसे AICTE या जो भी गवर्निंग बॉडी है वो देखो। उसमें एक कंसर्न ये था कि जैसे क्राइटेरिया फिक्स करते हैं ना 6.5 CG या ऐसे, तो इसमें भी एक चीज ये होगी कि आपने तो सिर्फ 40% किया आपको माइनर नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वही डिस्क्रिमिनेशन किसी चीज की नहीं। ये नहीं कि आपने 60% कंप्यूटर पढ़ा 40%, नॉलेज तो वहाँ भी गेन करिए ना। वही एग्जांपल मैंने आपको ड्रोन का दिया, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर 9 CGPA लेके आ जाए और ड्रोन के वो पहिए ही बनाएगा, उड़ा तो सकेगा नहीं जब तक उसको इलेक्ट्रॉनिक वो जैसे आपने कहा 60% उसने वो सीख लिया, 40%, और एक बंदा है जिसने 80 सीख रखा है, 20 दूसरा,
लेंगे उसको। नहीं वो मैं बोल ना चेक पॉइंट भैया क्यों लेंगे? आपकी डिग्री 8 डिग्री है, मेजर ये माइनर ये, आपकी सीजीपीए इज 8, एक है सीजीपीए इज 5, आप कह रहे हो कि एक सिर्फ कंप्यूटर का है। लेकिन मैम वो 8 सीजीपीए में तो ओवरऑल होगा। हाँ ओवरऑल ही है। तो फिर ओवरऑल में तो ये भी हो सकता है, मतलब रिटर्न चीज की हो सकता है उसमें मैकेनिकल में अच्छा करेगा, कोई बात नहीं, नॉलेज तो नॉलेज है, तो काम तो लेकिन वो पढ़ाई सिलेक्ट हो है। गया फिर गड़बड़ नहीं। नहीं कोई गड़बड़ नहीं, नॉलेज आपकी नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। और कोई ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने अब इसमें से निकालोगे इतना परसेंटेज, उसका कितना था उसका कितना था, नो। जो ओरिएंटेड ही हो जाए ये वो जॉब चाहिए मेन तो यही होता है। सर देखिए अभी तो मैं तो कह रही हूँ कि हमारे डीएनए में ये है कि हम हर चीज जो बच्चा पैदा बाद में लड़की पैदा होती है ना उधर सुंदर है, इसको अच्छा पति मिलेगा नौकरी वाला। हमारा डीएनए खराब है, जेनेटिक मेकअप हमारा इतना बिगड़ चुका है कि हर चीज हम नौकरी से रिलेटेड है। अभी आप लोग तो यूपी और उसके राजस्थान के आए हमारे पास टीचर्स जो सीधा बीटेक करके प्रिंसिपल बन गए। राजस्थान में बहुत सालों बाद पोस्ट निकली, सीधा प्रिंसिपल की, ठीक है। तो वी आर वेरी मच एस्टोनिश्ड। चलो भाई जिनकी चाय की इच्छा है वो पी ले, अगर बैठे हैं तो डिस्टर्ब ना करें। हाँ पीछे वाले जा सकते हैं, चाय पीनी है आगे हो जाए, नो इश्यूज। तो जिनका पॉलिटेक्निक में मैंने ये पूछा कि हम बड़े हैरान हुए, आईआईटी एनआईटी से आईटी छोड़ के एमटेक छोड़ के वो पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल बन गए राजस्थान में। पोस्ट आई है उत्तराखंड में भी आई है पीछे से मतलब ये कोविड टाइम में आई, कोविड टाइम में आई तो राजस्थान हमारे पास 35 आए, 35 में से सारे 30-32 जो थे वो सब मतलब कोई आईटी का है, कोई एनआईटी का है, या कोई आईटी एमटेक छोड़ के आ रहा है, कोई एनआईटी या कोई प्राइवेट में भी बीएसएनएल जेटी कहीं नहीं थे छोड़ के आ रहे। तो वी वर वेरी एस्टोनिश्ड के और आगे आगे कोई इसमें ग्रोथ नहीं है कि प्रिंसिपल के बाद आप डिप्टी डायरेक्टर 18 साल बाद बनोगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर की 2 पोस्टें हैं, डिप्टी डायरेक्टर की 6 और डायरेक्टर की 1, तो 10-8 पोस्टों के लिए आप सारी उम्र लगोगे और वहीं रहोगे आईटीआई के प्रिंसिपल। इशू क्या था? सरकारी नौकरी। पहले तो बोले हमारे फ्लेयर है, हम राजस्थान रहना चाहते हैं, हमारा प्यार है। बाद में जब धीरे धीरे खुले मैं कहा अब बताओ, तो वही था कि सरकारी नौकरी। लड़कियां कहती हैं कि हमें लड़का ही वही चाहिए जो सरकारी नौकर हो, आईटी वाला चाहे लगाओ किसी भी कंपनी में, बट अगर बाबू है सरकारी तो वो उससे नौकरी करके शादी करेंगे। तो मेन चीज तो अभी लाइवलीहुड और जॉब है। तभी ये जो गवर्नमेंट है ना, जॉब सीकर्स मत बनो, जॉब क्रिएटर्स बनो, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप पे और इन सब पे ज्यादा फोकस है। तभी अभी ये तो और आसपास एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट सबको पढ़ाना जरूरी हो गया है। वो किस लिए? सबको तो नहीं बनना है, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अभी बन के 2 साल बाद नहीं 4 साल बाद मैं अपना कुछ सेटअप करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ नॉलेज तो एंटरप्रेन्योर की हो, कुछ नॉलेज। मैंने अभी से सोच लिया कि मैंने नौकरी नहीं करनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मैंने अपना बिजनेस करना है। तो मुझे है कि चलो मैं एक बार लीगल एस्पेक्ट या फाइनेंशियल एस्पेक्ट या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं उन सब की नॉलेज तो हो मुझे, तो वो इस तरह के साथ इसको देखो। आउटलायर्स मत देखो कि मैंने 80% ये कर लिया बीच में डांस डूस करूँ। आप ये देखो कि अलॉन्ग विद कंप्यूटर मुझे एंटरप्रेन्योर की भी नॉलेज मैं ले सकती हूँ, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक्स मैं लीगल भी ले सकती हूँ, अलॉन्ग विद सिविल मुझे अपना आर्किटेक्चर बन गई आर्किटेक्ट, मुझे सिविल की नॉलेज ही नहीं है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे इंटीरियर डिजाइन का भी अगर मुझे सब्जेक्ट मिल जाए सोने पे सुहागा है। इस तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी है। बाकी मिस यूज करना तो हम इंडियंस को आता ही, जहाँ नंबर ज्यादा होंगे, जहाँ टीचर होगा, जहाँ इसमें तो मैम एक चीज सही है, जैसे अपने को दिख रहा है 5 साल बाद क्या होने वाला है, तो बच्चे के हिसाब से अपना जो क्रेडिट्स है वो मैनेज थोड़ा सा तो आप मतलब बाकी तो देखिए जो भगवान ने चाहा ना वही होता है, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री आप चाहते हो फॉलो करना उसको रोकने वाला कोई नहीं। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये नॉलेज भी हो, मुझे ये भी पता हो या थोड़ा बहुत ये पता हो तो इसको, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और कुछ अरे परे नहीं चाहिए, मैंने इंजीनियर ही बनना है, तो वो रोक थोड़ा रहा है, है ना? अभी Elon Musk has done his degree in physics, but इसमें degree है, उसमें already is one of the greatest engineers right now. Yes. क्या बातें कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं वो फिर से एक एलॉन मस्क और उसने इंडिया से नहीं करी है, ठीक है? अच्छा एक छोटी सी है, फिर मैं भी मुझे मेरा भी नेक्स्ट मेरी वर्कशॉप में बात एक 5 मिनट
मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, दिस इज वेरी, दो चीजें आपको जाननी जरूरी है। आप एक है मल्टीपल एंट्री एग्जिट मींस अभी क्या है, आप 3 साल के लिए या 4 साल के लिए अपने डिग्री में गए, so it is mandatory that you complete your 4-year degree program, then only you will get the degree, yes or no? अभी बीच में आप छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर कहानी खत्म। Now but the government is giving this leverage, okay, if I want to leave after first year of my studies, I can leave, but then it's not that the story is over. I can, if I want to come back, I can come back and resume my studies from the second year also. ये तो मैं पूरा दिन हो सकता है तब। एक्चुअली ना मैम भी वेट करें, दूसरा एक्सपर्ट भी वेट कर रहे हैं। चलो अभी यही वेट कर रही थी कि एंड होगा तो जाऊंगी। नहीं होगा। एनीवे ये तो मल्टीपल एंट्री, आप लोग के लिए एक चीज खुद ही पढ़ लेना, NAP is giving the provision of getting a joint degree or dual degree or twinning program with the foreign institutes. अगर आप लोगों ने अभी PhD जैसे नहीं करी है या मास्टर्स की है, so now there is a flexibility to have a joint program with the Indian higher education, any institute and the foreign institutes also. You can just go through it, okay?